بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، آج شب برات کی رات یہ 3 کام لازمی کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی، آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، رب کریم سے جو مانگو گے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، شب برات کی یہ رات سال میں ایک بار آتی ہے۔ آج کی رات رب سے مانگنے کی رات ہے۔ آج کی رات نصیب اور تقدیر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج کی رات اگر آپ یہ 3 کام کر لیتے ہیں، یہ وظیفہ صرف چند منٹ کا ہے۔ آج کی رات جسے قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، چند منٹ کے اس عمل سے آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کے رہے گا۔ آج رب کریم سے مانگنے کی رات ہے، آج خزانے لوٹنے کی رات ہے، آج کی ہر گھڑی قبولیت کی ہے، ہر لمحہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال ہے۔ آج کوئی تنگ دست ہے، بیکاری ہے، فقیر ہے، پریشان ہے، قرض دار ہے، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے، دنیا کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، بڑے سے بڑے مسائل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ صرف آج شب برات کی اس رات میں یہ 3 وظائف پڑھ لینا، انشاءاللہ ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز سمجھانے کی پوری کوشش کروں گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آج کی رات کسی سے بھی چھوٹی سی لاپرواہی سے یہ وظیفہ ضائع ہو جائے، کیونکہ آج کی رات خوش قسمت بندہ ہی یہ کام کرے گا، یہ 3 وظائف پڑھے گا، جو چھوٹے چھوٹے اعمال ہیں جو ہر کسی کو زبانی آتے ہیں۔ آپ نے یہ وظائف، آپ نے یہ اعمال بہت بار پڑھے ہوں گے، لیکن شب برات کی رات کے یہ خاص الخاص وظائف جس ترتیب، جس تعداد میں بتاؤں گا، آپ نے بتائے گئے طریقے سے پڑھنے ہیں۔ اگر آج کی رات چند منٹ نکال نہیں سکتے، آپ نوافل پڑھتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، آپ شب برات کی رات میں کچھ بھی پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، اس سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ شب برات کی رات کے یہ خاص الخاص 3 وظائف لازمی پڑھیے گا۔ آپ جو بھی پڑھتے ہیں ان کا آپ کو فائدہ تو ہو ہی جائے گا، لیکن آج یہ جو 3 کام، یہ جو 3 چھوٹے چھوٹے وظائف بتاؤں گا، میری جو بہنیں، جو بھائی اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے سے پڑھ لیں گے، ساری زندگی دعائیں دیں گے انشاءاللہ کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ اس رات کو قبولیت کی رات کہا جاتا ہے، اس رات کو عظمت والی رات کہا جاتا ہے۔ آپ دنیا کے کسی بھی کونے سے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے ہیں، آپ سعودی عربیہ سے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، جاپان سے ہیں، مسقط، عمان، اٹلی، دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب آپ کے ملک میں شب برات کی رات آ جائے تو آپ نے یہ 3 کام کر لینے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ کے پاس پوری رات اور پورا دن موجود ہے، آپ میں سے جس کو جہاں جیسے وقت مل جائے، آپ نے یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال، 3 چھوٹے چھوٹے وظائف پڑھ لینے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ 3 وظیفے چند منٹ میں پڑھ لیے جائیں گے۔ اگر آپ چند منٹ نکال کے شب برات کی رات میں رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کے بیٹھ نہیں سکتے تو پھر آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ انشاءاللہ یہ چند منٹ کے اعمال سے آپ کی ساری زندگی کی تمام پریشانیاں اور مشکلات سے نجات پا لیں گے۔ کئی سالوں کی رکی ہوئی دعائیں، کئی سالوں کے رکے ہوئے کام، کئی سالوں سے اٹکے ہوئے کام جو آپ نے محنت و مشقت کی، لوگوں کی منت سماجت کی، بڑی بڑی سفارشیں بھی کی، پھر بھی پورے نہ ہوئے، آج شب برات کی رات یہ 3 اعمال، یہ 3 چھوٹے چھوٹے وظیفے ایک بار میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ کے دیکھو، آپ کی ہر دعا قبول ہو جائے گی۔ میرا رب فرماتا ہے، تو مانگ اس رات میں، تو مانگ مانگ کے تھک جائے گا، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ میرے بھائیوں، آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج رب کریم سے وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے۔ میرے رب کی ایک ان کی محتاج ہے۔ آج کی رات مانگنے والے پر نظر کرم ہو جائے گی۔ آج کی رات بیمار ہو، شفائے کلی کے لیے پڑھ لو۔ آج کی رات تنگ دست ہو، بیکاری ہو، فقیر ہو، غربت کے مارے ہو، در در کی ٹھوکروں سے تنگ آ چکے ہو، بے شمار وظائف، تسبیحات، اعمال کر کر کے تھک چکے ہو، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا، تو آج شب برات کی رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لو۔ میں کہتا ہوں کہ وظیفہ پڑھتے دوران ہی ہر حاجت پوری ہو جائے گی، وظیفہ پڑھتے دوران ہی رب کعبہ کی خاص رحمتوں برکتوں سے جھولیاں بھر جائیں گی انشاءاللہ۔ مصلی چھوڑنے سے پہلے پہلے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے۔ جس کو لگتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، آج آزما کے دیکھ لو، آج شب برات کی رات ہے، آج کی رات سال میں ایک بار آتی ہے، اور یہ رات جس کو نصیب ہو جاتی ہے، اور جو بندہ اس رات میں یہ 3 چھوٹے چھوٹے اعمال کر لیتا ہے، رب کو راضی کر لیتا ہے، اور جس سے رب اور
रब का महबूब राजी हो जाए, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। वो जो नौकरी, वो जो रिस्क, वो दौलत जिसके लिए आप कई सालों से ठोकरें खा रहे हैं, कई सालों से दर बदर फिर रहे हैं, आज की रात में ये 3 छोटे छोटे अमाल करने से आपकी गैब से मदद हो जाएगी, आपके बिगड़े काम संवर जाएंगे, आपके मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। जो कई सालों से ना मिल सका, आज की रात में ये 3 वज़ाइफ पढ़ने से मिल जाएगा। मेरे भाइयों, मेरा बस चलता तो मैं आपको हाथ से पकड़कर खुद जाए नमाज पे बैठाता। आज इस वजीफे का मैंने शिद्दत से इंतजार किया। आज की रात का मुझे भी शिद्दत से इंतजार था, क्योंकि मैं भी तो अल्लाह का बंदा हूँ, मैं भी तो रब के सामने हाथ फैला के मांगने वालों में से हूँ। आज मैं भी ये 3 अमाल पढ़ूंगा और मैं इन वजीफों की, इन अमाल की, इन 3 कामों की अजमत फजीलत को जानता हूँ। इसलिए बहुत से लोगों को इस वजीफे को मैंने व्हाट्सएप किया, बहुत से लोगों को मैंने खुद बताया और आप लोगों के लिए इस वीडियो को बनाया है। खुदारा इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखिएगा। इसका एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है, बहुत खास है। आज शब बारात की रात को लापरवाही में मत गुजारना। आज की रात को जितनी तवज्जो और ध्यान से ये वजीफा पढ़ सकते हो पढ़ लो। मेरे भाइयों, ये वजीफा हर किसी के नसीब में नहीं आएगा। आपने दुनिया जहां के तमाम काम छोड़ के शब बारात की पूरी रात मौजूद है। आप दुकान पर हैं, दुकान पे पढ़ लो, दफ्तर में हो, दफ्तर में पढ़ लो, चलते फिरते पढ़ लो, सफर में पढ़ लो। वजीफा छोड़ने का कोई बहाना नहीं, ना वक्त की कोई पाबंदी है, ना जगह की कोई कैद है। सिर्फ आपने शब बारात की रात में ये 3 काम कर लेने हैं। आपके पास पूरी रात मौजूद है, जिसको जहां और जैसे वक्त मिल जाए आपने ये 3 छोटे छोटे काम कर लेने हैं। वजीफा सिर्फ चंद मिनट का है। तो चलिए वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए अमल की तरफ चलते हैं। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को लाइक और अपने प्यारों के साथ सवाब की नीयत से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। कोशिश करें कि दुनिया के जिस कोने तक इस वीडियो को पहुंचा सकते हैं पहुंचाएं, ताकि सब बहन भाइयों का भला हो सके। सवाब की नीयत से इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। फिल्में, गाने, ड्रामे तो सब लोग शेयर करते हैं। आज देखते हैं कि इस पैगाम को कौन कौन शेयर करता है। आपने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ इस वीडियो को शेयर करके अपना नाम कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखना है। अमल की बेहतरीन रहनुमाई के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आप सबसे पहले बावजू होके मसल्ले पे बैठ जाएं। हो सके तो गुस्ल कर लीजिएगा। पाक साफ कपड़े पहनकर बावजू मसल्ले पे बैठ जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका पे दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लें। आपने दुरूद पाक सिर्फ एक बार पढ़ना है। बेहतर तो ये है कि आप नमाज वाला दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा, लेकिन उससे पहले तवज्जो कीजिएगा। एक बात बहुत जरूरी, हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों ने अभी तक वीडियो को स्किप करके या काट के देखा हो, लेकिन अब अगर आपने वीडियो स्किप करके देखनी है तो मेरे भाइयों आप वजीफा छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि जो लोग शब बारात की रात की कदर करते हैं वो वीडियो को एंड तक लाजमी देखेंगे। ये मेरी आपसे गुजारिश है, वो इसलिए कि एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बहुत अहम है, बहुत खास है, आपके हक में है, आपकी बेहतरी के लिए है। अगर आपकी वीडियो स्किप करने से कोई अहम बात, वजीफे का कोई बहुत ही खास हिस्सा छूट गया, जाया हो गया, तो फिर ना कहना कि वजीफे का फायदा ना हुआ। वजीफा एंड तक लाजमी देखो। एक एक नुक्ता, एक एक बात बहुत खास है। बताए गए तरीके से पढ़ना। अगर आप एक रात में अपनी हर दुआ को कबूल करवाना चाहते हैं, रब्बे काबा की रहमतों बरकतों से झोलियां भरना चाहते हैं, तो आज की रात वीडियो स्किप मत करना, वरना पछतावा पूरे साल रहेगा कि काश मैंने वो वीडियो मुकम्मल देखी होती तो आज मेरे भी वारे न्यारे होते। मेरे घर से बेसुकूनी का, बेबरकती का, बेऔलादी का, तंग दस्ती का और हर मुश्किल परेशानी का हल हो जाता। पछतावे से बेहतर है आज की वीडियो मुकम्मल देखिएगा। कोई फजूल बात नहीं होगी, सिर्फ वजीफा बताऊंगा। सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है। एक बार सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद।
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक बार दुरूद पाक पढ़ के आपने सबसे पहले वजीफे का आगाज करना है। दुरूद पाक पढ़ते ही फौरी तौर पर आपने अपनी आंखों को बंद कर लेना है और जब तक आपका वजीफा, आपका अमल मुकम्मल ना हो जाए, आपने अपनी आंखों को बंद रखना है। तवज्जो बहुत जरूरी है। आपने अपने मकसद की नियत करनी है। नियत कीजिए आप रब करीम से, अगर आपकी सैकड़ों हाजात हैं, हजारों हाजात हैं, तो आज एक एक करके रब करीम से मांगते चले जाओ। आप किराए के मकान पे रहते हो, अपना जाती मकान के लिए पढ़ लो। आज की रात ये वजीफा पढ़ने से मेरा रब एक रात के अंदर अंदर आपको गैब से असबाब पैदा फरमाएगा और आपको बेहतरीन घर से नवाजेगा। आप गाड़ी चाहते हो, गाड़ी मांग लो। बे औलाद हो, औलाद मांग लो। जिनके घर में बेटियां हैं, बेटे के ख्वाहिशमंद हैं, नरीना औलाद के लिए पढ़ लो। आप कर्जदार हैं, कर्ज की दलदल में फंसे हुए हैं, कर्ज में बाल बाल भीगा हुआ है, लोग दरवाजे पे आना शुरू हो गए हैं और जलीलो रुस्वा करते हैं। लोग आपको हर जगह पे ताने देते हैं। अगर आप जलालत से बचना चाहते हो, लोगों के तानों से बचना चाहते हो, कर्ज जैसी दलदल से बचना चाहते हो, तो अपने मकसद की नियत करो। मनपसंद नौकरी, मनपसंद शादी, दुनिया के हर मकसद में कामयाबी की नियत लाजमी करना। आज शब बारात की रात कबूलियत की रात है। ये मौका साल में एक बार मिलता है। आज लापरवाही मत करना। आज जो कुछ मांग सकते हो मांग लो। आप जो भी मांगेंगे आपको इंशाअल्लाह गारंटी के साथ मिलके रहेगा। यकीन नहीं आता तो आज की रात ये वजीफा पढ़ लो। मकसद को जहन में रख के ये वजीफा पढ़ने की देर है कि मसल्ला छोड़ने से पहले आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। आपकी जो हाजत है, जो मकसद है, जो ख्वाहिश है, अपने अल्फाज में अपने मकसद की नियत करते हुए आपने वहीं पे बैठे सबसे पहले एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के वजीफे का आगाज करना है। मैं पहले कह चुका हूँ कि वजीफा चंद मिनट का होगा। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना वरना पछताओगे। मैं बार बार कह रहा हूँ, फायदा आपका है। ये रात साल में एक बार आती है, फिर पूरी जिंदगी, पूरा साल मौजूद है। जो कुछ करना है कर लेना। आज की रात चंद मिनट तो अच्छे तरीके से वजीफे को समझ लो। आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते ही आंखें बंद करते हुए अपने मकसद को, जिसको आप आज हर हाल में पूरा करवाना चाहते हैं, उस मकसद को जहन में रखते हुए पहले नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो कुरान मजीद की एक आयत है। रब के कलमात हैं। कुरान मजीद में एक एक हर्फ रब के अल्फाज हैं। आज एक ऐसी कुरानी आयत बताऊंगा जो आपने आज शब बारात की रात में पढ़नी है। आपने पहले नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है, आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। आज आप लापरवाही मत करना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। मेरा बस चलता, मैं बाजू से पकड़ के आपको मसल्ले पे बैठाता और कहता कि आज की रात ये 3 काम कर लो वरना पछतावा रहेगा। जो लोग पढ़ेंगे वो लोग खुली आंखों से मौजज़ा देखेंगे। शब बारात की रात में रब करीम की इतनी करम नवाजी हो जाएगी कि सुबह उठते ही लोग पूछने पर मजबूर हो जाएंगे, मेरे भाइयों ये इतना मालो दौलत, इतनी कामयाबियां, अरूज, तरक्की कहां से आ रही है। आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को 100 दानों की एक तस्बीह पे पढ़ना है। आज की रात हो सके तो तस्बीह के दानों पे पढ़ लो, हाथ की उंगलियों पे पढ़ लो, लेकिन पढ़ना 100 बार है। ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। जितनी तवज्जो के साथ आप हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील का वजीफा पढ़ेंगे उतनी ही जल्द तकदीर बदल जाएगी, नसीब खुल जाएगा, हर मुश्किल परेशानी का गायब से खात्मा हो जाएगा। तवज्जो कीजिएगा, पहले नंबर पर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील की एक तस्बीह करनी है। कैसे पढ़ना है तवज्जो कीजिएगा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील एक बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 2 बार हो गया, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील 3 बार हो गया। इस तरह से आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 100 दानों की एक तस्बीह पे पढ़ना है। आप तस्बीह पे पढ़ लें, लेकिन 100 का मतलब 100 होना चाहिए। ना कम पढ़ना है ना ज्यादा पढ़ना है। ये शब बारात की रात का खासुल खास वजीफा है, इसलिए 100 दानों पर आपने हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। और जब जब आपकी जुबान से हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निकल रहा हो, ये कुरानी आयत पढ़ते दौरान रब करीम से जो जो दिल में आता चला जाए मांग लेना, क्योंकि ये एक तस्बीह
हस्बुनल्लाह व निअमल वकील की पढ़ते दौरान आपके दिल में, आपके दिमाग में, आपकी जुबान पर जो हाजत, जो मकसद आता जाएगा, आज की रात कबूलियत का दिन है, कबूलियत की रात है, मुंह से निकली हर बात पूरी हो जाएगी। अगर एक तस्बीह पढ़ते दौरान आपकी 40-50 हाजात है, 40-50 ख्वाहिशात भी मांगते हो तो पूरी हो जाएंगी। वो रब है जो आसमानों का मालिक है, जो जमीनों का मालिक है। आप किसी बंदे से नहीं मांग रहे, आप रब करीम से मांग रहे हैं। आज खजाने लूटने का दिन है, आज खजाने लूटने की रात है, आज आसमान से खजाने बरसाए जा रहे हैं। कोई लूटने वाला है तो आज ये वजीफा पढ़ लो। ये वजीफा पढ़ते ही फरिश्ते खुद खजाने लेके आपके कदमों में आ जाएंगे और फरिश्ते रब के हुक्म से आएंगे। जब हुक्म रब की तरफ से आता है फिर दुनिया की कोई रुकावट आपका सामना कर ही नहीं सकती। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पहले नंबर पर वजीफा पढ़ते ही दूसरे नंबर पर जो वजीफा आपने पढ़ना है वो आयत करीमा का वजीफा है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ भी कहा जाता है। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में आयत करीमा का जिक्र किया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ा। रब करीम ने गैब से मदद फरमाई, जहाँ समंदर में कोई मदद को ना पहुँच सकता था, मछली के पेट से आजाद करवाया सिर्फ हुक्म इलाही की वजह से। अगर आप भी किसी काम में अटके हुए हैं, आप भी किसी ताकतवर दुश्मन के चुंगल में फंसे हुए हैं, आप भी किसी मसाइल, कर्ज जैसी दलदल और बेहद परेशानियों का शिकार हैं, अगर आप भी इन तमाम मसाइल से जान छुड़वाना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ आयत करीमा ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को पढ़ के देखें। ये आयत करीमा पढ़ते ही आपके मसाइल का खात्मा हो जाएगा। आपकी बड़ी से बड़ी परेशानियां, बड़ी से बड़ी रुकावटें, बड़ी से बड़ी मुसीबतें गायब से खत्म होना शुरू हो जाएंगी। मसल्ला छोड़ने से पहले पहले आपके तमाम बिगड़े काम संवर जाएंगे। अगर चंद मिनट के वजीफे से आपकी नस्लें आबाद हो जाएं, सालों की रुकी हुई दुआएं, ख्वाहिशात एक रात में पूरी हो जाएं, तो इससे बढ़ के और क्या चाहते हो मेरे भाइयों। आपको फिर जो कामयाबी रब की तरफ से आती है ना, वो देर पा होती है। ये वजीफा पढ़ के जो कामयाबी, जो ख्वाहिशात पूरी होंगी वो कुछ दिनों, कुछ महीनों के लिए नहीं बल्कि पूरी जिंदगी के लिए होंगी। आपने दूसरे नंबर पर जो वजीफा पढ़ना है वो वजीफा आयत करीमा को हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें, तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 11 बार पढ़ना है, तवज्जो कीजिएगा, सिर्फ 11 बार पढ़ना है। पहले नंबर पर हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना है। कितनी बार पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एक एक नुक्ता, एक एक बात, एक एक चीज बच्चों की तरह समझाई है, क्योंकि मैं जानता हूँ आज की रात बड़ी अहम है। आज की रात कबूलियत की रात है। एक सेकंड भी वीडियो स्किप ना करना, वरना वजीफे का फायदा ना होगा, क्योंकि कोई भी अहम बात मिस हो गई तो वजीफा जाया हो जाएगा। दूसरे नंबर पर आयत करीमा को 11 बार पढ़ना है। कैसे पढ़ना है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन एक बार हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 2 बार हो गया, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 3 बार हो गया। इस तरह से आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन को हाथ की उंगलियों पर सिर्फ और सिर्फ 11 बार पढ़ना है। और इंशाअल्लाह सिर्फ 11 बार ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ने की देर है। आपके रास्ते की रुकावटें हट जाएंगी, ताकतवर दुश्मन भी रास्ता छोड़ने पर मजबूर हो जाएगा। वो जो आप कई सालों से मेहनत और मुशक्कत के बावजूद कामयाब नहीं हो रहे थे, आज आयत करीमा पढ़ने की देर है। ऐसे ऐसे रास्ते खुल जाएंगे, ऐसी ऐसी मुसीबतें टल जाएंगी जो कभी टलने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये वजीफा पढ़ के देखिएगा, ये मुश्किल कुशा अमल है, हर हाजत रवा अमल है। ये वजीफा आज की रात का खासुल खास वजीफा है। इस रात में मांगने वाले को मांगना नहीं पड़ता, मेरा रब बिन मांगे अता फरमाता है। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील के बाद दूसरे नंबर पर आयत करीमा का वजीफा पढ़ना है। आयत करीमा पढ़ते ही फौरी तौर पर तीसरा और आखिरी वजीफा, जो इस अमल की रीढ़ की हड्डी है, जिसके बगैर आपका वजीफा नामुकम्मल है। तीसरे नंबर पर आपने या अल्लाहु या मोहम्मद को पढ़ना है। या अल्लाह रब काबा का जाती नाम, या मोहम्मद रब के महबूब का नाम। और आज की रात रब और रब के प्यारे महबूब के दरमियान एक राज है, और जब रब और रब के प्यारे महबूब का नाम या अल्लाहु या मोहम्मद पढ़ा जाता है तो शब बरात की रात कबूलियत हो जाती है।
یا اللہ یا محمد پڑھنے سے شب برات کی رات میں بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بن مانگے حاجات پوری ہو جاتی ہیں، تقدیر بدل جاتی ہے، نصیب کھل جاتا ہے، ہر طرح کے نظر بد جادو جنات سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان چھوٹ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد شب برات کا راز ہے، یہ کوئی نہیں بتائے گا۔ یہ کامیابی کے وظائف، ہمارا مقصد دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ جب دینے والی ذات رب کی ہے، پھر میں کیوں نہ وہ وظائف بتاؤں جس سے آپ کی زندگی آسان ہو جائے۔ یا تو میں نے دینا ہو تو میں کہوں کہ میرے پاس زیادہ رہے اور آپ کے پاس کم رہے۔ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیوں کی تقسیم رب کی طرف سے ہے، اور میں رب کو منانے کا، رب کے محبوب کو منانے کا ایک ایسا راز بتا چکا ہوں۔ وہ راز کیا ہے؟ یا اللہ یا محمد آپ نے صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے توجہ کیجئے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ یا اللہ یا محمد کو آپ نے صرف اور صرف 21 بار پڑھنا ہے، 21 ٹائمز پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 21 بار۔ یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد صرف 21 بار پڑھتے دوران ہی میرا رب اور رب کے پیارے محبوب آپ کے ہر کام میں آسانی پیدا فرمائیں گے۔ آپ کو ہر مشکل، ہر پریشانی سے نجات ہو جائے گی۔ آج بیٹا بھی مانگو گے انشاءاللہ ملے گا۔ آپ اپنا ذاتی گھر مانگو گے مل جائے گا، روزگار مانگو گے، من پسند نوکری، من پسند شادی، دنیا کی جو بھی حاجت ہے آج بن مانگے رب کریم دینے کو تیار ہے۔ آج لاپرواہی مت کرنا۔ آج کی رات میں نے سینے کا راز آپ کے حوالے کیا ہے، کامیابی کا راز آپ کے حوالے کیا ہے۔ بے شک آپ بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن دیکھ لینا یہ وظائف، یہ تسبیحات، اعمال، یہ راز کوئی نہیں بتائے گا جو میں نے آپ کو فی سبیل اللہ بتا دیا۔ خدارہ شب برات کی رات میں یہ 3 کام بتائے گئے طریقے سے، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات، ایک ایک چیز میں نے سمجھائی ہے۔ بتانے میں، سمجھانے میں میرے بھائیوں وقت ضرور لگا ہے، لیکن وظیفہ چند منٹ کے اندر پڑھ لیا جائے گا۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل آیت کریمہ اور یا اللہ یا محمد کو کتنی بار پڑھنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، ہر چیز میں نے بچوں کی طرح آپ کو بتا دی ہے۔ آج کی رات یہ 3 کام کر کے دیکھیے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی وظیفہ بتایا تھا، واقعی کسی نے سینے کا راز ہمارے حوالے کیا تھا۔ میرے بھائیوں دعا ہے کہ رب کعبہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرو۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجئے گا، کیونکہ آج گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے وظیفہ ضائع نہ ہو جائے۔ سچی توبہ کرنے کے بعد دل لگا کے ضد کر کے جو مانگو گے میرا رب 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، وہ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، اور محترم ناظرین کرام اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھ دیا کریں۔ جزاک اللہ۔